Good morning students. Welcome to our YouTube channel विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन, और इसमें ये आज आपका 5th लेक्चर है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन? फर्स्ट, अ स्विमर कंप्लीटिंग वन रिटर्न ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू अदर बैंक। A freely suspended bar magnet displays from its north-south direction and released a hydrogen molecule rotating about its center of mass. An arrow released from a bow. तो इसका आंसर होगा बेटा बी एंड सी। क्यों होगा उसका रीजन आप यहाँ पे देखिए। स्विमर्स मोशन इज नॉट पीरियोडिक, मोशन ऑफ द स्विमर बिटवीन द बैंक्स ऑफ द रिवर इज बैक एंड फोर्थ, हाउएवर it does not have a definite period. This is because the time taken by the swimmer during his back and forth journey may not be same. The motion of a freely suspended magnet, if displaced from its north-south direction and is released periodic. This is because magnet oscillate about its position with a definite period of time. क्योंकि जो मैग्नेट है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइप के बाद जो है ऑसिलेट हो रहा है। व्हेन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इट कम्स टू द सेम पोजीशन अगेन एंड अगेन आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सच अ मोशन इज पीरियोडिक। An arrow released from a bow moves only in forward direction. It does not come backward. Hence, this motion is not periodic. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 14.2। Which of the following example represent nearly simple harmonic motion and which represent periodic but not simple harmonic motion? तो इसमें देखिए, फर्स्ट है the rotation of earth about its axis। सेकेंड है आपका motion of an oscillating mercury column in U-tube। motion of a ball bearing inside a smooth curved bowl when released from a point slightly above the lowermost point। And next है इसका general vibration of polyatomic molecule about its equilibrium position। आंसर इसका होगा बेटा बी एंड सी करेक्ट है, जो एसएचएम में है, एंड डी जो है पीरियोडिक है बट नॉट एसएचएम है। इसका रीजन देखिए, ड्यूरिंग इट्स मोशन अबाउट इट्स एक्सिस Earth comes to the same position again and again in equal interval of time. Hence, it is a periodic motion. However, this motion is not simple harmonic. This is because Earth does not have a to and fro motion about its axis. An oscillating mercury column in U-tube is simple harmonic. This is because the mercury moves to and fro on the same path about the fixed position with a certain period of time. The ball moves to and fro about the lowermost point of the ball when released. Also, the ball comes back to its initial position in the same period of time again and again. Hence, its motion is periodic as well as harmonic। ठीक है, तो इस तरह से इसका मोशन क्या हो गया, पीरियोडिक भी हो गया और हार्मोनिक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज मेनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन। इट्स वाइब्रेशन इज सुपरपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। हेंस इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक, बट ये क्या है, पीरियोडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिगर 14.27। देखिए यहाँ पे डिपिक्ट्स 4xt plots for linear motion of a particle. Which of the plot represent periodic motion and what is the period of motion? हर एक केस में बताना है आपको। एक ये देखिए xt ग्राफ ये है, ये भी xt ग्राफ है,
ये भी एक टी ग्राफ, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा पीरियोडिक है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी ग्राफ, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ ग्राफ। फर्स्ट क्यों नहीं है? इट इज नॉट अ पीरियोडिक बिकॉज दिस रिप्रेजेंट अ यूनिडायरेक्शनल लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ मोशन in this case. In this case, the motion of the particle repeats itself after 2 seconds. Hence, it is a periodic motion having a period of 2 seconds. It is not periodic motion. Next है, periodic motion क्यों नहीं है? This is because the particles repeats the motion in one position only. For periodic motion, the entire motion of the particle must be repeated in equal interval of time. ठीक है। और जो लास्ट है वो इस केस में क्या होगा? द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 2 सेकेंड, हेंस इट इज अ पीरियोडिक मोशन हैविंग अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, यानी जो पीरियड है 2 सेकेंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन? गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन. ओमेगा इज एन एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, सेकेंड है साइन क्यूब ओमेगा टी, थर्ड है आपका 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी, एंड फोर्थ है cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी, एंड फिफ्थ है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड लास्ट आपका 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखिए, एस एच एम गिवन फंक्शन इज साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी है, √2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1/√2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया आपने तो ये एक बन गया। 1/√2 को लिख सकते हैं क्या? कॉस पाई बाई 4, यहाँ पे 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाई 4, तो इसको लिख सकते हैं क्या? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। This function represent SHM as it can be written in the form of a sin omega t plus phi. Its period is 2 pi by omega. Periodic but not SHM. Next है, the given function क्या है? sin cube omega t है, 1/2 3 sin omega t minus sin 3 omega t. The term sin omega t and sin omega t individually represent, अगर इंडिविजुअली इनको देखें साइन ओमेगा टी और साइन 3 ओमेगा टी की अगर हम बात करें तो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM इज पीरियोडिक नॉट SHM, यानी कि दो मतलब SHM का अगर आप सुपर इम्पोजिशन कराते हैं तो वो क्या होगा? पीरियोडिक होगा, लेकिन SHM नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट है द गिवन फंक्शन 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी, 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको। दिस फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a cos ओमेगा टी प्लस 5। पीरियड क्या है इसका? 2 पाई बाई 2 ओमेगा, एंड जिसको लिख सकते हैं पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट क्या? पीरियोडिक बट नॉट SHM। द गिवन फंक्शन इज cos ओमेगा टी प्लस 3 cos 3 omega t plus cos 5 omega t. Each individual cosine functions represent SHM. However, the superposition of 3 simple harmonic motion is periodic but not simple harmonic. Non-periodic motion, the given function exponential e to the power minus omega square t square is an exponential function. Exponential function do not repeat themselves. Therefore, it is not a it is a non-periodic motion. The given function 1 plus omega t plus omega square t square is non-periodic function. Next है आपका क्वेश्चन, a particle is in linear simple harmonic motion between 2 points A and B 10 centimeter apart. Take the direction from A to B as the positive direction and give the sign of velocity, acceleration and force on the particle when it is at the end A, at the end B, at the midpoint of AB, going towards A, at 2 centimeter away from B, going towards A, at 3 centimeter away from A, going towards B,
and at 4 centimeter away from B going towards A। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर 0 पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड 0 निगेटिव निगेटिव, थर्ड का आपका हो जाएगा निगेटिव 0 0 एंड फोर्थ का निगेटिव 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 एंड फिफ्थ है आपका 0 पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एक्सप्लेनेशन देखिए, द गिवन सिचुएशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। पॉइंट ए एंड बी आर टू एंड्स, दो एंड्स हैं ए और बी के। ए बी की कितनी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वो मिड पॉइंट है। पार्टिकल इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन एंड्स। एट द एक्सट्रीम पॉइंट ए द पार्टिकल इज एट रेस्ट मोमेंटरली, hence its velocity is 0 at this point. Its acceleration is positive as it's directed along AO। जैसे AO की तरफ जाता है तो acceleration क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव होगा इस केस में as the particle is directed rightward. At the extreme point B the particle is at rest momentarily, hence velocity is 0 at this point, extreme point. Its acceleration is negative as इट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग बी। जैसे ही ये बी की तरफ डायरेक्ट होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। फोर्स भी निगेटिव होगा इस केस में। पार्टिकल इज डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओ इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इट्स वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन O is maximum. The value for velocity is negative as the particle is directed leftward. The acceleration and force of particle executing simple harmonic motion is 0 at the mean position. Fourth का देखिए, the particle is moving towards point O from the end B. This direction of motion is opposite to the conventional positive direction, which is from A to B. Hence, the particle's velocity and acceleration and the force on it are all negative. Next आपका, the particle is moving towards point O from the end A. This direction of motion is from A to B, which is conventional positive direction. Hence, values for velocity, acceleration and force are all positive. And last में क्या है, this case is similar to the given case D, यानी कि इस वाले केस से ही ये भी मिलता जुलता है, इसलिए दोनों का रीजन सेम होगा. तो आज के लिए बेटा इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस. बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.